एक बार पुनः स्वयं को शांत स्वरूप में JCRC जयपुर। And our chief guest, Shri Parvesh Verma ji, who is the Cabinet Minister from Government of Delhi, will be joining us shortly. It is our privilege that we are welcoming all of you to this amazing Ambedkar International Center. Okay, who doesn't know our respected Shivani Didi? She is also with us. So I would like Shivani Didi also to join us on stage. We'll be having a very enlightening session from respected Didi. We'll start today with the remembrance of the Supreme Father. Let us invoke the power here. And we sit in meditation for 2 minutes and then we start. Thank you. Thank you so much. Music and dance are the universal languages that dissolve all barriers. To set the spirit of oneness, let us enjoy a beautiful खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे, जगमगाएंगे जग में। उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुरा दो, हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो।
Vice Chairman of Maharaja Agrasen College, Dr. Taruna Gautamji, Vice Chancellor of IIM University, Brother Prem, Didi Anusuya, Councillor Ramesh Bhaiji of the East Patel Nagar, Delhi, Colonel Akash Patilji, the Director of Ambedkar International Center. We request all of you to please join us for Deep Prajwalan. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से Definitely we need India to grow, and that is why we are having a launching ceremony today of a new project. It's called GROW, Guidance to Rejuvenate for Overall Wellness. It's a free online counseling service for students and faculty. The highlights of this program are they provide counseling for support for mental health and well-being, overcoming overthinking and stress, resolving relationship issues, improving concentration and clarity, freedom from drug and digital addiction, building confidence and आत्मा को झंझोड़ती है। आपके आशीर्वचन हम साथ में लेकर के जाएंगे यहाँ से, और हमारे जीवन को ज़रूर, जैसे आपने बताया वैसे प्रैक्टिकल, हर समय हर क्षण हर कदम पर वैसे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड नाउ द मोमेंट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर. We have a personality on stage who has touched millions of hearts worldwide, right? And she has touched our heart also, the one who has simple yet profound wisdom, that is the soul.
with her clarity, compassion, and practical approach to spirituality. We have with us the Nari Shakti Puraskar awardee, Sister Shivani. A round of applause for Didi. Thank you. हम दीदी से सुनेंगे कि वर्ल्ड यूनिटी और ट्रस्ट कैसे हम अपने लाइफ में, हमारे जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यूनिटी की, ट्रस्ट की, और उसको हम एजुकेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सभी सीधा होकर बैठेंगे. एडिक्टेड जो है उसको वो लिखे पढ़े का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो एडिक्ट हो चुका है. तो हमें ये पता तब चला जब हम एडिक्ट ऑलरेडी हो चुके थे. लेकिन डी एडिक्ट होने की शक्ति हमारे पास है या नहीं है? आप में से किस किस को लगता है आप एडिक्टेड हो? आपके बच्चों को छोड़ देते हैं, आप ऑलरेडी वेरी लेट. लेकिन परमात्मा हमेशा कहते हैं लेट हो लेकिन टू लेट नहीं हो. अभी भी यू टर्न लिया जा सकता है. तो कौन रेडी है डी एडिक्शन के लिए? खाना होता है. हाँ, ये वाला इजी है ना, 10-15 मिनट. हाँ, इजी है. दिस अनइंस्टॉल डन. ताली बजाओ. कितनी दुआएं देने. ये होता है दृढ़ता. कोई चीज पता है हमारा नुकसान कर रही है, तो हम फिर भी उसको ले रहे हैं, है ना? मानना ही पड़ेगा. कर लेंगे ना, मान लेंगे ना, बस मानना ही पड़ेगा. और अगर नहीं मानेंगे तो आप मानना मत उनकी बात. एक और चीज बहुत जरूरी है, वो घर से स्टार्ट होती है. ना बोलना. थोड़ा ज्यादा ना बोलने की जरूरत है. हम सब कितना ना सुनते थे जब हम बड़े हो रहे थे. सुनते थे ना कि नहीं सुनते थे? कितना ना सुनते थे. हम अगर हम बोलते हमको वहां नहीं जाना है, तो बोलते थे आपको पूछा किसी ने? आपको पूछा जाना है कि नहीं जाना है? सिर्फ बताया कल सुबह 10 बजे हमको जाना है. तो हम रोते थे, शोर मचाते थे. कोई फर्क नहीं पड़ता था उन पे. जाना ही है आपको. हमें लगता था कितने स्ट्रिक्ट माँ बाप है हमारे. और तो मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्योंकि हवा में तनाव है और डर है, तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है. इसी तरह हम जी रहे थे और 2020 में कोविड आया और सडनली पूरे विश्व ने 2 साल के लिए कहा फियर नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, कोविड है, होना ही है. और सडनली पूरे विश्व की हवा में दर्द, डर, दुख, बीमारी आई. फिर बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, ग्रीफ क्रिएट हुआ. 2 साल बाद कोविड खत्म हो गया, लेकिन डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक नॉर्मल हो गया, सिर्फ क्योंकि हवा में है. इसलिए अपने आप को इस हवा के प्रभाव से बचाने के लिए अब जैसे हम चल रहे हैं वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि हवा हम पर असर कर रही है. तो हमें अब जीवन जीने का लक्ष्य ऐसे बनाना पड़ेगा कि मेरे अंदर रोज़ मेरी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऊपर जाना है. अगर हम ऐसे रहे तो सिर्फ जो वायुमंडल है वो हमें किस डायरेक्शन में ले जाएगा? हाथ करिए एक बार. वायुमंडल किस डायरेक्शन में ले जाएगा आपको? ऐसे. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 2 साल में, ये पहले नहीं होता था, पिछले 2 साल में वेयर एवर आई गो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो और कितनी भी संख्या हो, एक बार सिर्फ पूछो किसको खुशी चाहिए. 1 सेकंड में ऐसा सबके हाथ जाते हैं ना. हमने सबको कैसे खुशी चाहिए हो सकती है? कोई तो होगा जो खुश रहता है. और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अंदर वो जो एक फीलिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि पोस्ट कोविड दर्द, दुख. परिवार में लोग शरीर छोड़ते हैं, पहले भी छोड़ते थे, अभी भी छोड़ते हैं, लेकिन कोविड के बाद बहुत फर्क है.
कोविड के बाद साल बाद भी, 2 साल बाद भी बिल्कुल उतना ही दर्द हो रहा है और उतना ही रोना आ रहा है जैसे कि महीना पहले किसी ने शरीर छोड़ा है। मतलब ग्रीफ हील नहीं हो रहा है। हवा दूषित है। कुछ साल पहले स्क्रीन के खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो शब्द उधर चल रहे हैं, जो दृश्य वहाँ चल रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो आवाज़ है, उसके जो शब्द हैं, वो अनअब्जॉर्ब कर रहा है। और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। हम वो वाली संस्कृति हैं जो परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं। लेकिन जब एक दिया बनेगा तो उसके बाद बहुत जल्दी दूसरा दिया बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक को पास वो शक्ति होनी चाहिए सही पर खड़े होने के लिए, इवन इफ यू आर दी ओनली वन, एंड इवन इफ अगर आपका सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। आजकल हम सारा दिन बहुत कुछ पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है वहाँ।